Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we will be having our 14th lecture, and that is the continuation of shareholders and shareholders activism. Before we start our today's lecture, let's have a quick review about our last lecture. In last lecture we discussed that shareholders are innocent and helpless victims when scandals occur. हम ये डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि शेयर होल्डर्स बेसिकली जब कॉरपोरेशंस में स्कैंडल्स राइज होती हैं, जब कॉरपोरेशंस बैंकरप्ट होती हैं, तो नॉर्मली लॉस जो होता है वो शेयर होल्डर का होता है. देन वी डिस्कस two categories of investors. The first one is basically called individual investors. Like suppose if you have a very massive amount in your hand, so you go straight to the company, either directly or through the investment bank, and make your direct investment in the company. On the other side, if you have limited amount in your pocket, in your hand, so you go to different institutional, normally we call it mutual funds, pension funds. So you invest your money in those funds and become the part of the parent company as an institutional investors. Then we discuss two questions, that why shareholders cannot save themselves, number one, number two, and why they are not accepting the responsibility. So the answer of first question is that it's basically the Security and Exchange Commission responsibility to safeguard the shareholders' money. लेकिन हम देखते हैं कि there are thousands of companies in the stock market in which we can see millions of investors, millions of shareholders. तो हर एक इन्वेस्टर के पैसे को बचाना it's not that much easy. जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर का काम यह है कि वो आम पब्लिक को सेफ गार्ड करे, लेकिन इंडिविजुअल बंदे को हर एक बंदे को प्रोटेक्शन देना इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द पुलिस. सो सिमिलरली गिविंग प्रोटेक्शन टू ईच एंड एवरी investor, each and every shareholder, it's not an easy task for the Security and Exchange Commission. Similarly, the second answer of second question is why they don't take a responsibility, because in every company, अच्छी company में there are thousands of investors, sometimes millions of investors. So it's a natural phenomena कि जब आपके पास minimum number of shares होते हैं, so you don't care about your company. आपको इतनी केयर नहीं होती कंपनी के बारे में. Your main concern is just to visit your company website and get information about the dividend that you are receiving. So we discussed that institutional investors are more effective and influential than the individual investors. कि institutional investors ज़्यादा influential होता है companies की management में. So individual investor इतना influential नहीं होता, because कि institutional investors
या जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल जो फंड्स हैं उनमें पैसा ज़्यादा होता है. सो नॉर्मली दे आर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़. ऑन द अदर साइड डायरेक्ट इन्वेस्टर्स या डायरेक्ट जो शेयर होल्डर है उसके पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होते हैं. लेकिन सपोज इफ देयर इज़ एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं और उसके पास कंपनी के हैंडसम नंबर ऑफ शेयर्स है, सो ही कैन बी द इन्फ्लुएंशियल पार्ट ऑफ द कंपनी एंड कैन इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट एक्टिविटीज. Then we discuss some benefits of mutual funds, that the advantage of professional investment management. Funds managers have real access and information about the company. Then we discuss the diversification in the investment, कि आपके पास म्यूचुअल फंड में they invest your money in different bonds and stocks. So low cost and high quality investing. If you have low cost, अगर आपके पास पैसा कम है, so even then you can become the part of the company through mutual funds. Convenience and flexible in the sense कि it's very easy just to go to mutual funds, fill up the application form and become the investor in mutual funds. Automatically when you are the part of the mutual funds, so you are the part of the parent company or the part of that company जहाँ पे mutual fund investment करेगा. So you are basically the part of the indirect part of the parent company. So mutual fund investment are liquid and easy to withdraw. अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो if suppose you are the investor in the mutual fund, so by giving just a simple application form you can get your money very soon. It will take either 3 days, 5 days or 7 days. लेकिन if suppose you are a direct investor or individual investor, so company से फिर वापस अपना पैसा निकालना it's very lengthy process. So cost of mutual funds, basically one of the disadvantages of mutual fund is that they charge some hidden fee charges, जिसमें yearly charges होता है, या when you are doing any sort of transaction, if you are buying the shares or selling the shares in the mutual fund, तो हर एक transaction पे you have to pay a certain fee to the mutual funds. So basically today we will discuss that what is basically meant by shareholders activism, कि how the shareholder, it can be either the direct shareholder, direct investor, or the institutional investor, how they can play their role in the company's management. So the goal of activists ranges from financial as well as non-financial matters, कि जो shareholders activism वो role play करता है financial activities में as well as non-financial matters that we will discuss today. Then individual shareholders activism, we discuss a bit more about this topic. Then how monitored by the large shareholder, monitoring by the large shareholders, that we will discuss today. Then we will discuss an overview about the institutional investors or institutional shareholders. Now the critical question is that does institutional shareholders activism really works? That we will discuss. कि shareholder के activism के बाद firm की performance, is there any direct relationship or not? Then we will discuss some potential roadblocks to effective shareholders activism, कि
शेयर होल्डर्स की एक्टिविज्म ना होने की क्या क्या वजूहात हैं, जिसमें हमारे पास है कि लिमिटेड डिज़ायर टू बी एक्टिविस्ट, कि उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं होती टू बिकम द रियल एक्टिविस्ट. देन मैनी अदर ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट, they have many other options for investment, means कि if suppose एक म्यूचुअल फंड्स है, सो अगर वो किसी कंपनी से खुश नहीं है, सो ऑब्वियसली दे हैव मेनी अदर ऑप्शंस कि वो अपना पैसा किसी और कंपनी में लगा सकते हैं, बजाय इसके कि वो उस कंपनी के लिए एज एक्टिविस्ट रोल प्ले करें. So basically the management don't hire pension fund advisors who are troublemakers for management. So जो पेंशन पब्लिक पेंशन फंड जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, सो नॉर्मली वहाँ पर जो एडवाइजर्स वो लेते हैं टू मैनेज द पेंशन पब्लिक पेंशन फंड, तो वो ऐसे एडवाइजर्स लेते हैं जो ज़्यादा मोटिवेटेड ना हो, जो ज़्यादा एक्टिविस्ट ना हो. सो नॉर्मली पब्लिक पेंशन फंड में एडवाइजर्स या एक्सपर्ट्स अगर आते हैं तो वो मैनेजमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक हों. प्राइवेट पब्लिक फंड नॉर्मली गो विद मैनेजमेंट एक्टिविटीज़. दूसरी बात ये कि जो पब्लिक या प्राइवेट फंड्स होती हैं वो भी नॉर्मली मैनेजमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक काम करती हैं. दे डोंट वांट देमसेल्व्स टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मैनेजमेंट. लॉ रिस्ट्रिक्ट देम टू बिकम मेजर ऑनर ऑफ द फर्म. लॉ रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी फंड को रोकती है टू बिकम द मेजर ऑनर ऑफ द फर्म, एंड दैट इज बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म. अगर एक इंडिविजुअल या एक म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी का मेजर ऑनर बन जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो कंपनी की मैनेजमेंट को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती है. Another drawback or you can say the roadblock toward the activism is that it's include a very long-term paperwork. In international perspective, we will discuss today invest. We can see company discourages one investor to become the significant owner. West ये चीज़ डिस्करेज करती है कि एक बंदे के पास लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स हों. In East we can see greater honors, that is the family honor and as well as the state honor. लेकिन ईस्ट में आपको लार्ज ऑनर्स नजर आ सकती हैं. So what is shareholders activism? When shareholders express their opinions to try to affect or to influence a firm that are being active shareholders. Shareholders activism, as we have discussed, as a situation in which the shareholders can talk or can influence the management activities. So an activist shareholder uses an equity stake in a corporation to put public pressure on its management. Equity stake means the number of ownership or the percentage of ownerships that shareholders have. So an activist shareholder basically वो अपनी ownership, if it's a direct shareholder or if it's the mutual funds. So mutual fund basically जो उसके पास ownership है, जो उसकी जो परसेंटेज ऑफ इक्विटी है वो यूज करता है मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए. फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड में 1000 इन्वेस्टर्स हैं, तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजमेंट होती है वो कंपनीज
की मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करती है ऑन बिहाफ ऑफ देयर इन्वेस्टर्स। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड का जो एनालिस्ट होता है या जो टॉप मैनेजमेंट होती है, दे आर रिप्रेजेंटिंग basically your point of view as an investor. So the goal of activist shareholders range from financial and non-financial matters. Activist shareholders जो अपना activism show करता है, so वो financial matters as well as non-financial matters होती है. In financial matters they can pressurize the management how to look at the company's policies, the financial structure and cost cutting. In financial, increase of shareholders value through change in corporate policy, financing structure and cost cutting, etc., etc. So as an activist shareholder, नॉर्मली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो ये कोशिश करते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट को फोर्स करें कि वो अपनी पॉलिसी ऐसी स्ट्रक्चर्ड करें, अपनी पॉलिसीज ऐसी फॉर्मुलेट करें, या अपना फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर चेंज करें, या अपने एक्सपेंसेस कम करें, जिससे आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है, जो automatically will enhance the share price. So in finance, the activist shareholder can influence the company's corporate policies, their financing structure, and can suggest them how to decrease their expenses, obviously which will result in having a good financial position, and automatically will somehow put a good impact on the share price. To non-financial disinvestment from particular countries, adoption of environmentally friendly policies. Non-financial matters ये कि activist shareholders, dear students, when I say activist shareholders, that means the direct shareholder, direct investor, as well as the institutional investors, both के लिए ये जो मैं term use करूँगा, that is called activist shareholders. So non financial activities में activist shareholder किस तरह रोल प्ले करता है कि activist shareholder can proposed कि कंपनी की जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी एक किसी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, सो दे कैन प्रपोज कि ये बिजनेस आप इस कंट्री से उठा के दूसरी कंट्री में करें, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. हो सकता है कि वो उस कंट्री के हालात ठीक ना हों, वहाँ पर कुछ इश्यूज हों, दैट कुड बी सम रिलेटेड टू द बिजनेस एथिक्स, कि वहाँ पर लॉ सिचुएशन ठीक नहीं है. Suppose if there is child labor issues involved in that country, so activist shareholders can give some proposals to the management that to divert your business from any country to another country. And adoption of environmentally friendly policies. And another reasons of diverting business from one country to another country could be कि आप जहाँ पर आपके लिए जो environment suitable हो, आपको काम करने में आसानी हो, so that sort of policies, that sort of suggestions can be given by the activist shareholders. Activism by three kinds of shareholders. Activism by individual shareholders. An individual investors with only a modest number of shares is able to attend shareholders meeting, submit proposals to be voted by at those meetings, and vote at those meetings.
एज वी हैव डिस्कस्ड कि अगर एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास हैंडसम नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हैंडसम नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, तो उसको कंपनी की तरफ से लेटर मिलते हैं टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग एंड मेनी अदर मीटिंग्स। सो फिर उसमें क्या होता है कि वो इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर हैं वो फिर डिफरेंट प्रपोजल्स देते हैं कि अबाउट एनीथिंग, कुड बी एज वी हैव डिस्कस्ड फाइनेंशियल प्रपोजल्स एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल प्रपोजल्स। लेकिन पास्ट में काफ़ी साल पहले इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर या शेयर होल्डर होता था उसके पास इतनी ताकत नहीं थी या उसको कंपनी की तरफ से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी इवन टू प्लेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रपोजल्स। सो एक हिस्ट्री हमें ये बताती है कि लुइस गिलबर्ट इज जनरली क्रेडिटेड with being the first individual shareholder activist। लुइस गिलबर्ट साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उसने इंडिविजुअल शेयर होल्डर की एक्टिविज्म में बहुत अहम रोल अदा किया है कि इन 1932 एज द ऑनर ऑफ 10 shares of New York Consolidated Gas Company he attended the annual meeting but was not allowed to ask questions। कि 1932 में गिलबर्ट साहब के पास न्यूयॉर्क कंसोलिडेटेड गैस कंपनी के 10 शेयर्स थे। जब वो एनुअल जनरल मीटिंग में बैठा तो उसको अलाउ नहीं किया गया टू आस्क इवन अ सिंगल क्वेश्चन। सो देन गिलबर्ट एंड हिज ब्रदर पुश्ड to reform, and in 1942 the Security and Exchange Commission credited a rule to allow shareholders to submit proposals that they could be put to a vote। फिर गिलबर्ट साहब और उसके भाई ने काफ़ी कोशिशें की और आखिरकार 1942 में ऑलमोस्ट 10 साल के बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने ये चीज़ रियलाइज की कि नहीं, अगर इफ देयर इज मेजर इंडिविजुअल शेयर होल्डर है तो उसको मीटिंग में बोलना चाहिए, उसको मीटिंग में डिफरेंट प्रपोजल्स देने चाहिए, उसको मीटिंग में एटलीस्ट डिबेट करना चाहिए, क्वेश्चन पुट अप करना चाहिए फ्रॉम द बोर्ड एज वेल एज फ्रॉम द management। So that is basically the US data. Today anyone owing more than $2,000 or 1% of a firm stock on a continuous basis for at least 1 year is able to submit a proposal to be considered and voted on the shareholders meeting। So आज अगर किसी के पास $2,000 या 1% ऑफ फर्म के स्टॉक्स हैं तो वो एक साल तक अगर वो उसको मेंटेन रखें तो एटलीस्ट दैट शेयर होल्डर इज अलाउड टू पुट और टू सबमिट एनी सॉर्ट ऑफ प्रपोजल्स इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग। अब दैट इज नॉट नेसेसरी कि उसने जो प्रपोजल पुटअप की है वो एक्सेप्ट भी हो, लेकिन एटलीस्ट ही इज अलाउड टू पुट अ प्रपोजल ऑफ एनी सॉर्ट, ऑफ एनी टाइप। बट मोस्ट ऑफ द प्रपोजल्स डू नॉट अप्रूव, especially those that go against management desires। इंडिविजुअल शेयर होल्डर प्रपोजल दे सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एनुअल जनरल मीटिंग में डिफरेंट प्रपोजल्स आती हैं। सो उस प्रपोजल्स पे ज़्यादा फोकस होता है जिसको मैनेजमेंट फेवर करे, बिकॉज एंड ऑफ द डे सब शेयर होल्डर्स जानते हैं इफ इट्स द डायरेक्ट और इंडिविजुअल शेयर होल्डर और द इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर। सो
सबको पता होता है कि कंपनी बेसिकली मैनेजमेंट चलाती है. सो दे आर कंपनी इज in the best position to judge or analyze the credibility of different proposals. क्योंकि मैनेजमेंट को पता होता है कि किस प्रपोजल पे वो अच्छा काम कर सकते हैं और कौन सा प्रपोजल इतना अच्छा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रपोजल शेयर होल्डर्स की तरफ से आता है कि फॉर एग्जाम्पल लाइक फाइनेंशियल मैटर्स, कि आप अपना बिजनेस एक कंट्री से उठा के दूसरी कंट्री में ले जाए बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, देयर आर चाइल्ड लेबर issues that are involved, etc., etc. So that seems a very good proposals. That seems a very good suggestion toward the management. अब लेकिन मैनेजमेंट को पता है कि अगर हमने अपना बिजनेस इस कंट्री से उठा के दूसरे कंट्री में कर दिया, सो वी नो कि हमें कितना लॉस हो सकता है. सो ऑल्दो प्रपोजल अच्छा है, लेकिन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल because end of the day the main motive of the company is to run your business. Company is not just to solve the ethical issues, the business ethical issues, but the bottom line of the company is to run your business. अगर आपका बिजनेस दूसरे कंट्री में रन ही नहीं कर रहा, तो आप फिर जो एथिकल इश्यूज हैं उसका आपने क्या करना है. So the main thing is, so these sort of proposals आती हैं मुख्तलिफ किस्म की शेयर होल्डर्स की तरफ से. So but the management is basically in the best position to understand the credibility, the validity of those proposals. So monitoring by large shareholders. Now, is it good to have large shareholder? Yes, for shareholders and no for managers. कंपनी में thousands के हिसाब से शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसके पास एक बंदे के पास कम शेयर्स होंगे, दूसरे के पास थोड़े से ज्यादा होंगे. सो द क्वेश्चन इज कि किसी भी कंपनी में what do you think कि ये जरूरी है कि आपके पास ऐसे लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज शेयर होल्डर्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे के पास 1% शेयर हैं, दूसरे के पास भी 1%, तीसरे के पास भी 0.5%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन कुछ लार्ज शेयर होल्डर्स भी होने चाहिए जिसके पास कम से कम 30% या 20% इतने नंबर ऑफ शेयर्स हों या इससे भी ज्यादा. सो यस फॉर शेयर होल्डर्स मीन्स कि जब लार्ज शेयर होल्डर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं, लार्ज शेयर होल्डर्स, तो वो कंपनी के लिए अच्छा है ऑन द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि वो मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है इन देयर डिसीजन मेकिंग. एंड नो फॉर मैनेजर्स मीन्स के लार्ज शेयर होल्डर्स ये मैनेजमेंट के लिए इसलिए ठीक नहीं है कि वो हर एक काम में मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में इंटरप्ट करती है. नॉर्मली एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इनिशियल स्टेजेस पे जब फर्म बनती है, कंपनी बनती है, तो उसको दे मस्ट हैव a certain large number of shareholders, large shareholders, not numbers, के 2, 3 या 5 large shareholder होने चाहिए ताकि because company is in the initial stages, तो वो चूंकि पैसा शेयर होल्डर का है तो वो मैनेजमेंट को डायरेक्शन दे सकती है, मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है. लेकिन अगर सारे ही शेयर होल्डर्स के पास मिनिमम या लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हों तो फिर वो कलेक्टिवली मैनेजमेंट को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, अगेन
एक कंपनी है जो इनिशियल स्टेजेस पे है, जिसमें हर एक शेयर होल्डर के पास एक एक % ऑफ शेयर्स हैं. सो दैट मीन्स कि कंपनी के पास 100 शेयर होल्डर्स हैं बाय हैविंग 1% ऑफ शेयर्स ईच. सो कंपनी इनिशियल स्टेजेस पे है. अब कंपनी की मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है तो एक शेयर होल्डर हो सकता है उसको फेवर ना करें, या 10 उसको फेवर ना करें, या 20 उसको फेवर ना करें. तो 20% उसको फेवर नहीं करेंगे, लेकिन जो 80% है दे विल बी फेवरिंग द मैनेजमेंट डिसीजन. सो इस सूरत में वो 20% या 20 शेयर होल्डर्स इतना इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकते. ऑन द अदर साइड एक दूसरी कंपनी है, न्यू कंपनी है, जिसमें एक बंदे के पास 1% ऑफ शेयर्स हैं, दूसरे बंदे के पास 1% ऑफ शेयर्स हैं, फिर 5 बंदे ऐसे हैं कि जिनके पास 10% ऑफ शेयर्स हैं ईच. मीन्स 5 शेयर होल्डर्स 50% ऑफ शेयर्स. तो वो बाकी सारे शेयर होल्डर अगर एक डिसीजन को फेवर करें और ये 5 बंदे सिर्फ उसको फेवर ना करें तो मैनेजमेंट वो काम नहीं कर सकती. सो इन शॉर्ट, इनिशियल स्टेजेस पे कंपनी के लिए ये जरूरी है कि उसके पास लार्ज शेयर होल्डर्स हों, जिनके पास, ताकि वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को ओवरसी करे, उसको जज कर सके, उसको एनालाइज कर सके. So some managers are the firm's largest shareholders. A good news for a firm can be a good monitor of a firm. For example, Bill Gates owns over 10% of Microsoft Corporation. तो आपके पास अगर किसी कंपनी में कुछ लार्ज शेयर होल्डर्स ज़रूरी हैं ताकि वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकें मैनेजमेंट को. So considered 2 firms, one having 1 or 2 large shareholders who owns 10% of the firm, other having no single large shareholders. We have discussed this in detail कि अगर कंपनी में लार्ज शेयर होल्डर होंगे सो वो कंपनी की मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अगर कंपनी में 2 बंदे हैं जिनके पास 25% और 26% ऑफ शेयर्स हैं, बाकी सबके पास मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो अगर कोई डिसीजन मैनेजमेंट गलत लेती है और वो छोटे शेयर होल्डर उनको फेवर करते हैं, तो ये बड़े 2 लार्ज शेयर होल्डर्स जिनके पास 25 और 26% ऑफ शेयर्स हैं, वो मैनेजमेंट को वो गलत डिसीजन लेने पे रोक सकती है. So, but large shareholders are required to monitor the firm at the initial stages, not when the firm mature. लेकिन जब फर्म एक दफ़ा मेच्योर हो जाती है, जिसमें आपकी मुख्तलिफ जो कमेटीज़ है वो प्रॉपरली काम करती हैं, सब कुछ आपका बिजनेस ठीक चल रहा होता है, तो उसके बाद यू डोंट नीड टू हैव लार्ज शेयर होल्डर्स इन योर फर्म. फिर आपका पूरा सिस्टम एक स्मूथली काम करता है. लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे it's very important to have some large shareholders in your firm. So institutional investor shareholders, an overview, they can put greater influence कर सकते हैं. काफ़ी proposals sponsored by institutional shareholders have much greater chance of success than one sponsored by individuals. कि जो प्रपोजल्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पुटअप करते हैं उसकी वेटेज ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज प्रपोजल्स जो कि एक इंडिविजुअल पुटअप करता है मीटिंग्स में, बिकॉज के जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू, उनकी ऑनरशिप, उनकी स्टॉक्स
ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर. So the main reason is their increasing ownership stake, that is institutional investors are actually large shareholders. This is what we are discussing now. कि the main reason ये है कि institutional investors की ownership जो stake है वो बहुत ज़्यादा होती है as compared to individual shareholders. So individual investors has the right to push institutions to be more active shareholders. तो जो institutional investors होते हैं, जो mutual funds की जो investors होते हैं, तो जो as a small investor in the mutual fund, I can pressurize my fund to put pressure on the company's management. अगर म्यूचुअल फंड में सपोज 1000 इन्वेस्टर्स हैं तो हम 1000 इन्वेस्टर्स मिल बैठ के अपने म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, टू इन्फ्लुएंस द पेरेंट कंपनी या द कंपनी जिसमें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट की है उसको वो प्रेशराइज करें. सो अनदर बेनिफिट ऑफ हैविंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज कि आप कलेक्टिवली अपने मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो जो पेरेंट कंपनी है उनको मुख्तलिफ किस्म के प्रपोजल्स दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में और आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं या मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो आपका इन्फ्लुएंस कंपनी में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है. सो म्यूचुअल फंड में इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ फैमिली जिसमें आप अपने जो मैनेजमेंट होती है म्यूचुअल फंड की उसमें आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं कि वो मैनेजमेंट को फोर्स कर सके और यू कैन इवन डिक्टेट योर मैनेजमेंट कि वो इस किस्म के प्रपोजल्स मैनेजमेंट को दें. So individual investors can influence the firms they own mainly through direct communication with management and other shareholders by identifying poor corporate performance and through pushing for reforms. So अगर आपको नज़र आता है एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कि आपके फलां कंपनी में ये फ्लॉज हैं तो आप कलेक्टिवली एक कैंपेन चला के कलेक्टिवली अपने मैनेजमेंट को फोर्स करके किसी भी किस्म का प्रपोजल्स और रिफॉर्म्स उन पे प्रेशराइज कर सकते हैं पेरेंट कंपनी में. बिकॉज इवन दो यू आर अ स्मॉल इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स लेकिन आपकी जो म्यूचुअल फंड के कलेक्टिव जो इन्फ्लुएंस है दैट इज देयर इन द कंपनी. For examples, during July 2002, the chairman of 1,754 major US firms all received a letter from the Teachers Insurance and Annuity Association College Retirement Equity Fund, TIAACREF, the country's largest pension fund, ask them to account for stock option as an expense. So dear students, 2002 में जो एक पेंशन फंड थी यूएस की दैट इज कॉल्ड एन्युटी एसोसिएशन कॉलेज रिटायरमेंट इक्विटीज फंड. सो उन्होंने उनकी इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी कि उन्होंने 1754 जो यूएस की मेजर फर्म्स थी उनके चेयरमैन को लेटर भेजा कि आप जो स्टॉक ऑप्शंस देते हैं अपने
मैनेजमेंट को, अपने एम्प्लॉयज को, तो उसको आप एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करें इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड इफ यू कैन रिकॉल in our second lecture, in our second chapter, that is executive incentives, we have discussed it in detail कि companies basically अपने management को खुश करने के लिए sometimes they give some shares, some stocks. तो अगर कंपनी उस स्टॉक्स को, उस शेयर्स को एट द मिनिमम वैल्यू वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करती एज एन एक्सपेंस, सो दैट मीन्स कि वो कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को डिक्लेयर नहीं कर रहे. सो टू हैव द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, द कंपनी मस्ट रिकॉर्ड द स्टॉक्स एज एन एक्सपेंस, ताकि कंपनी को पता हो कि भाई ये स्टॉक्स हमने एक मिनिमम वैल्यू पे अपने एम्प्लॉयज को दिए हैं, सो वी शुड रिकॉर्ड दैट एज एन एक्सपेंस. सो दैट मीन्स कि यूएस में 1754 कंपनीज में दे वर नॉट रिकॉर्डिंग द स्टॉक्स एज एन एक्सपेंस. सो एक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था, दैट इज एन्युटी एसोसिएशन कॉलेज रिटायरमेंट इक्विटी फंड, उन्होंने 1754 कंट्रीज, 1754 मेजर यूएस फर्म्स जो थी, उनके जो चेयरमैन थे, उनको लेटर भेजा कि आप इसको एज अ स्टॉक एक्सपेंस रिकॉर्ड करें. सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन इमेजिन कि इतने बड़ा पेंशन फंड जिसने इन्वेस्टमेंट की है 1754 मेजर यूएस फर्म्स में. So you can analyze the amount of capital, the pool of money, and that particular pension fund. So they constantly monitor firms and make numerous recommendations for reforms. So is pension fund, they were constantly monitoring the firms and putting different recommendations for reforms, because इनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी large number of firms में. So they were in constant practice by giving different sort of recommendations and proposals for reforms in those companies in which they have invested, they have made investment. और वो the number 1754, it's a very huge number. So coalition of pension funds can place some massive influence. For example, Council of Institutional Investors, जिसको CII बोलते हैं. On the other side, अगर 2-3 जो पेंशन फंड या म्यूचुअल फंड आपस में मिलके वो किसी भी कंपनी को बहुत ग्रेटरली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. लाइक वी हैव सीन कि एक पेंशन फंड ने 1754 मेजर कंपनीज को इन्फ्लुएंस किया है. तो अगर 2-3 या 4 म्यूचुअल फंड्स आपस में मिल जाए तो कैन यू इमेजिन कि वो कितना अहम रोल प्ले कर सकती है टू गवर्न डिफरेंट cooperation, to govern different firms' policies. So in short, we can say कि जो institutional investors होती हैं, they can play a very vital role toward the company's governance. So does institutional shareholders activism work? Now the question is कि institutional investors जब वो active होते हैं,
by giving different proposals, different reforms to the company, तो उससे क्या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है? Increased activism cannot be directly linked to the firm performance. स्टडीज काफी बताती हैं कि काफी एक्टिविज्म के बाद भी कंपनीज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो सकती. अच्छी हो भी सकती है, लेकिन 100% वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि इतनी एक्टिविज्म के बाद आइदर फ्रॉम द इंडिविजुअल और द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कि कंपनीज की परफॉर्मेंस कभी कभार अच्छी हो जाती है, कभी कभार अच्छी नहीं होती. सो देयर इज नॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स and their activism and the firm's performance. So there are many evidences which are in favor of this statement and few are not. So if we अगर आप जरा सा स्टडी करें, so you will see कि एक्टिविज्म कभी कभार कंपनीज की परफॉर्मेंस को फेवर करते हैं एंड कभी कभार वो कंपनीज की परफॉर्मेंस पे कुछ असर नहीं पड़ता. Activism has its own set of shortcomings which we discuss next. Activism की अपनी कुछ खामियां हैं कि क्यों शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म की तरफ नहीं जाते. So potential road blocks to effective shareholders activism कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो शेयर होल्डर्स को एक्टिविज्म से, शेयर होल्डर को एक्टिव होने से रोकती हैं. द शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ दीज इन्वेस्टर्स लिमिटेड देयर डिजायर टू बी एक्टिविस्ट के जो शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ दीज इन्वेस्टर्स के इन इन्वेस्टर्स का इतना ब्रॉड विजन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल इन्वेस्टर्स में सपोज अगर 1000 शेयर होल्डर्स हैं, तो एज अ स्मॉल शेयर होल्डर, सपोज इफ आई एम अ स्मॉल इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड, सो मेरा विजन इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपने म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट को फोर्स कर सकूं. So that depends on the individual investors in the mutual fund. हाँ, अगर किसी म्यूचुअल फंड में उसके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दे आर ब्रॉड माइंडेड, उनका विजन बहुत खुला है एंड दे नो द एक्चुअल बिजनेस इन द स्टॉक मार्केट, सो दैट इज अ गुड साइन फॉर द म्यूचुअल फंड कि उनके अपने इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं. सो ऑटोमेटिकली दैट एक्टिविज्म विल पुश द टॉप मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड to influence the company's management. लेकिन अगर किसी म्यूचुअल फंड में सपोज आई एम, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं विद द मिनिमम अमाउंट, सो व्हाई शुड आई बॉदर टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ हेडेक फॉर माय कंपनी. मैं क्यों मिनिमम अमाउंट के साथ इतना भाग दौड़ करूं, आराम से घर में बैठ के only waiting for my profit for my dividend. So the short term view of those investors limits their desire to be activist. Another roadblock is if the equity fund do not like the future prospects of the firm, they simply sell the stock instead of working to change the firm. सपोज एक इक्विटी फंड या जो म्यूचुअल फंड में उसको नजर आता है, अगर म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट को नजर आता है कि एक कंपनी ठीक काम नहीं करती, सो बेसिकली वो करते हैं क्या है कि बजाय इसके कि वो जो पेरेंट कंपनी है या वो कंपनी जिसमें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसको उसके लिए एक्टिविस्ट होने की बजाय वो सिंपली अपना बिजनेस, अपना जो स्टॉक है, अपने जो कैपिटल है, वो दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर देते हैं. सो सारा हेडेक लेने के लिए बजाय उसके कि वो
म्यूचुअल फंड के जो मैनेजमेंट है वो अपना एक्टिविज्म शो करे, मैनेजमेंट के साथ लड़े पेरेंट कंपनी के कि आप ये करें, आप वो करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सारी हेडेक लेने से अच्छा है कि वो अपना सारा कैपिटल दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज दे हैव मेनी अदर ऑप्शंस टू इन्वेस्ट। तो हेडेक लेने के लिए उस कंपनी को सही करने के लिए बजाय इसके कि उसको सही करे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट दूसरे बिजनेसेस में लगा देते हैं। So corporate executives do not hire those advisors who are aggressive and can interfere in management activities. Therefore, they won't hire pension fund advisors who are activists. So जो public pension fund होती है उसमें कंपनी बेसिकली ऐसे एडवाइजर्स को हायर नहीं करती जो बहुत एक्टिव हो और बाकी अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पुशअप करे टुवर्ड द एक्टिविज्म। सो प्राइवेट फंड्स यूजुअली जस्ट गो अलोंग विद द फर्म्स मैनेजमेंट। अनदर रोड ब्लॉक इज कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जितने भी म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक पेंशन फंड या प्राइवेट फंड्स, वो बजाय इसके कि वो एक्टिविज्म दिखाएं, बस वो मैनेजमेंट को साथ लेके चलते हैं। जो मैनेजमेंट कहती हैं दे सिंपली फॉलो द मैनेजमेंट डिसीजन, बिकॉज उनको पता होता है कि बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट बिजनेस दे आर गेटिंग द मनी। सो म्यूचुअल फंड्स विल नॉट bite the hand that feed them. That means कि म्यूचुअल फंड कभी भी कंपनीज के मैनेजमेंट के साथ टसल नहीं करेगी। म्यूचुअल फंड कभी भी अपना एक्टिविज्म इतना शो नहीं करती। इवन देन वो कर सकती हैं, लेकिन उनको ये खौफ होता है कि अगर हमने अपनी एक्टिविज्म शो की म्यूचुअल फंड ने, तो हो सकता है कि कंपनी उनको इतना ज्यादा रिटर्न या बिजनेस ना दे। सो बिकॉज ऑफ दैट फेयर म्यूचुअल फंड बेसिकली दे डोंट गो इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मैनेजमेंट। So more ownership of the stocks by mutual funds may lead to face heavy regulatory and tax burdens. Another roadblock toward the activism is कि अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के लेते हैं तो आपको काफ़ी डिफरेंट और लॉ की जो रेगुलेशंस हैं प्लस जो हेवी टैक्स बर्डन आप पे पड़ सकता है। So most of the time law restrict the pension fund to become stronger shareholder of any firm and more influential owners. Most of the time law pension fund को रोकता है, restrict करता है to become the major owner of the firm because it's good for the firm। कि अगर म्यूचुअल फंड अगर 2-3 म्यूचुअल फंड मिलके किसी भी फर्म के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स ले लेते हैं, सो दैट मीन्स कि फिर तो जो वो 2 म्यूचुअल फंड जो कहेंगी वही मैनेजमेंट करेगी बिकॉज दे हैव गॉट द लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स। सो लॉ भी कभी कभार रिस्ट्रिक्ट करता है कि एक बंदे की मोनोपोली नहीं बनाता लॉ in the firm to become the large shareholder. So experts are of the opinion that legal restrictions are for the corporation's benefit. Experts ये कहते हैं कि ये लॉ की जो restriction है in many countries, especially in the West, इससे ये फायदा होगा कि एक बंदे की मोनोपोली नहीं होगी to influence the management.
At the same time, these investors face tremendous SEC paperwork if they do wish to accumulate a significant stake in the firm. Another roadblock toward the shareholders activism is कि काफी पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है. किसी भी फर्म की मैक्सिमम या सिग्निफिकेंट स्टेक लेने के लिए या ऑनरशिप लेने के लिए या स्टॉक्स लेने के लिए, एंड एक्सट्रीम एंड अनफेवरेबल टैक्स रेमिफिकेशन इन द प्रोसेस. जितना आप किसी भी फर्म या कॉरपोरेशन की स्टॉक्स ज्यादा खरीदेंगे, आप भी गवर्नमेंट की तरफ से उतना ही हैवी टैक्स आता है. जस्ट टू रिड्यूस the trend of becoming the significant owner of the firm. Only a few laws actually encourage or make it easier for institutions to be effective owners. Only a few laws actually encourage or make it easier for institutions to be effective owners. बहुत कम लॉ में इतनी जगह है जो इंस्टीट्यूशन के लिए आसानी पैदा करें टू बी इफेक्टिव ऑनर्स. Now, international perspective is the public firms in the US and in the UK have the most dispersed ownership structure in the world. For an individual investor, it costs a lot of money to own even 1% of these large publicly traded firms. Institutional investors might have enough capital to be significant owner, but they have regulatory restrictions preventing them from owning a significant fraction of any of firm. So international perspective, US or UK में normally the law restrict you to become the significant owner of the company, although अगर ये individual हो या institutional investors हो या mutual fund हो. So because के आपकी monopoly ना हो, so there is a proportion कि कोई decision अगर हो management की तरफ से, तो अगर वो अच्छा है तो सब उसको फेवर करें, अगर वो अच्छा नहीं है तो सब उसको फेवर ना करें. So that is basically the main trend in the US and the UK. But in many other countries we can see greater ownership concentration. बाकी मुल्कों में हमको ऐसी कंपनीज नजर आती है कि जिसमें ऑनरशिप बहुत ज्यादा होती है. Like in the East, the two most common type of large shareholders are फैमिली ऑनर्स एंड स्टेक ऑनर्स. कि फैमिली मुख्तलिफ कंपनीज में फैमिली ऑनरशिप ज्यादा होती है, लाइक इन द ईस्ट, एंड स्टेट ऑनरशिप. दीज लार्ज शेयर होल्डर्स, स्पेशली फैमिली ओनर्स, actively participate in management and can enjoy some private benefits at the expense of their other small shareholders. So ऐसी कंपनीज जिसमें लार्ज शेयर होल्डर्स ज्यादा होते हैं, लाइक फैमिली ऑनर्स, तो फिर वो जो चाहते हैं मैनेजमेंट वो करती हैं. कंपनीज के एसेट्स को, कंपनीज की जो प्राइवेट जो मुख्तलिफ पर्क्स होती हैं उसको फिर वो अपने पर्सनल यूज में लाते हैं, और जो बेचारे सफर करते हैं दे आर द स्मॉल शेयर होल्डर्स इन द firms. So this is the end of our today's lecture. Let's have a quick review about the shareholders and shareholder activism. We discussed about the shareholders activism, that and the goal of activist ranges from financial as well as non-financial matters. कि किस तरह एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर एज वेल एज जो म्यूचुअल फंड, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या शेयर होल्डर, वो किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं.
फाइनेंशियल प्रपोजल्स दे सकते हैं कि आप अपना बिजनेस यहाँ से उठा के दूसरे मुल्क में ले जाएं, और नॉन फाइनेंशियल कि यहाँ पर बिजनेस कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, सो इट्स बेटर टू मूव योर बिजनेस फ्रॉम दैट एरिया टू अनदर एरियाज. Then we discuss individual shareholders activism monitored by large shareholders. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी proposals आती हैं वो उसको accept किया जाए. Basically most of the proposals जो accept होती हैं that is from the in compliance with the management जो attitude कि जो management चाहती है वो प्रपोजल एक्सेप्ट होते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट को पता होता है कि हमने बिजनेस कहाँ करना है. इफ द प्रपोजल हैज बीन गिवन कि इस मुल्क से आप अपनी बिजनेस को उठा के दूसरे मुल्क में कर दें, सो इट्स द मैनेजमेंट हु नोज कि अगर हम अपने बिजनेस उठा के दूसरे मुल्क में लेके जाएंगे सो हाउ मच वी विल गेट द लॉस. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि डज इंस्टीट्यूशनल shareholders activism work? The question is again there कि shareholders अगर active हो जाते हैं individual और the institutional investors, तो उससे क्या फर्म की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है? Question, the answer of this question is that there is not a direct relationship between the shareholders activism एंड द फर्म परफॉर्मेंस. कभी कभार फर्म अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर देते हैं एंड कभी कभार फर्म की जो मैनेजमेंट होती है वो इतना केयर नहीं करती. सो पोटेंशियल रोड ब्लॉक्स टू इफेक्टिव शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म कि वो कौन सी चीजें हैं जो रोकती हैं शेयर होल्डर्स को एक्टिविस्ट होने के लिए. द फर्स्ट वन, लिमिटेड डिजायर टू बी एक्टिविस्ट. उनकी इंडिविजुअल इतना डिजायर नहीं होता, उनका इतना विजन नहीं होता टू बिकम एक्टिविस्ट. मैनी अदर ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट. अगर म्यूचुअल फंड बजाय इसके कि वो किसी भी फर्म अगर ठीक काम नहीं कर रहा उसके लिए एक्टिविज्म दिखाने से, उसको मॉनिटर करने से, उसको इन्फ्लुएंस करने से, वो सिंपली अपना कैपिटल उठा के दूसरे बिजनेस में लगा देते हैं. सो मैनेजमेंट डोंट हायर पेंशन फंड एडवाइजर्स हु आर ट्रबल मेकर्स फॉर मैनेजमेंट. पेंशन फंड नॉर्मली में मैनेजमेंट ऐसे एडवाइजर्स हायर करती हैं जो मैनेजमेंट को फेवर करे, बजाय इसके अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उसको एक्टिविस्ट करने के लिए वो ऐसा बंदा हायर नहीं करती. So private public funds normally go with management activities. So another roadblock is कि जो mutual funds होते हैं so उनको भी कंपनी मैनेजमेंट की जो ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक चलना पड़ता है, बिकॉज दे नो कि इन द एंड इट्स द मैनेजमेंट हु आर गिविंग देम द मनी. सो कभी भी वो मैनेजमेंट की अगेंस्ट या उसकी ख्वाहिशात के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे. समटाइम्स लॉ रिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड टू बिकम मेजर ओनर ऑफ द फर्म विद द व्यू के अगर कंपनी में मोनोपोली आ गई बाय गेटिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेक और ऑप्शंस और शेयर्स बाय एनी म्यूचुअल फंड, तो वो कंपनी की मैनेजमेंट को काफी डिस्टर्ब कर सकती है. एंड अनदर रोड ब्लॉक इज अ लॉन्ग पेपर वर्क दैट इज अगेन stopping the shareholders to become the activist or the significant stakeholder, and the tax procedures from the government side. So the international perspective we discuss that we can see company discourage one investor to become the significant owner. कि वेस्ट ये डिस्करेज करता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल आइदर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को
या किसी भी इक्विटी फंड को या म्यूचुअल फंड को वो इतना अलाउ नहीं करता टू बिकम द सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर, ताकि अगर वो सिग्निफिकेंट हो गया एक दफा तो वो कंपनी की मैनेजमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है. सो इट्स बेसिकली फॉर द कंपनी बेनिफिट, फॉर द कंपनी बेटरमेंट. बट इन ईस्ट वी कैन सी ग्रेटर ऑनरशिप. ईस्ट में कंपनीज में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी द फैमिली ऑनर्स. एक कंपनी बनती है तो मैक्सिमम जो ऑनरशिप होती है वो फैमिली के ही हाथ में होती है. सो उससे नुकसान ये होता है कि जो वो चाहते हैं वही मैनेजमेंट करती है. नंबर वन, कंपनी के जितने भी इंसेंटिव्स पर्क्स जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं. एंड एट द एक्सपेंस ऑफ हुम, एट द एक्सपेंस ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स जो उस कंपनी में हैं. So this is the end of our today's lecture. Allah Hafiz.